اس کے اندر کتنے ہی سوال تھے مگر وہ پوچھنے کے قابل نہ تھی۔ مہرو کہاں تھی، اور سب سے بے چین کرنے والا سوال کہ اس کے ہاتھ میں دبا کاغذ کہاں تھا جو اس کا واحد اور آخری سہارا و آسرا تھا۔ اس کے بے دم وجود کے ساتھ وہ بھی لوگوں نے بچایا نہیں۔ اس کے پوچھنے پر اسے یہ جواب ملا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی سامان نہیں ملا تھا۔ وہ سامان کہاں تھا؟ سرمایہ تھا اس کا۔ وہ نرس کی مدد سے اٹھنے اور بیٹھنے اور چلنے لگی تھی۔ ہاں، نہیں، ہوں، بس اور پانی جیسے الفاظ بول رہی تھی۔ نانی اسے ضرورت اتنی ہی بات کرتی تھی۔ اس دوران بینکی ملازمین آ کر اس کا نیا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ضروری فارم اور دستاویز پر اس کے دستخط لیے گئے۔ نانی نے پہلے ہی اسے مہرالنساء کے دستخط بتا کر اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ جیسے جیسے وہ صحت یاب ہو رہی تھی اسے نانی کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ بیچاری اپنی نواسی کے پاس جانے پر خوش تھی۔ اسے نواسی سمجھ کر اس کی خدمت کی جا رہی تھی۔ حقیقت کھل جانے پر کس قدر دکھی ہوگی اس کا تصور اسے بھی دکھی کر دیتا تھا۔ جس دن اس کے چہرے کی پٹیاں کھلنی تھی اس دن راجہ بھاؤ مقامی اخبارات کے نمائندوں کے ساتھ موجود تھا۔ وارڈ کے دیگر مریض اور ان کے ساتھ ٹہرے اقربا بھی موجود تھے۔ اپنے سامنے یہ میلہ دیکھ کر اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے دیکھتی ہی اپنی مہرو نہ پا کر نانی کیا کریں گی، یہ سوچ سوچ کر اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب نانی نے میری مہرو کہہ کر اسے گلے لگایا اور وہاں موجود سارے حاضرین نے تالیاں بجائیں۔ اس نے چند منٹوں کے لیے ہی صحیح لیکن مہرالنساء کو بڑی اچھی طرح دیکھا تھا۔ ان دونوں میں کوئی مشابہت نہیں تھی کہ کوئی کنفیوژن ہوتا۔ کیا میں واقعی مہرو ہوں؟ اس نے بھی نانی کے پشت پر ہاتھ رکھا، گویا اسے بھی ان کے گلے لگ کر خوشی ہوئی تھی۔ یا اس حادثے میں میرا چہرہ اتنا بدل گیا ہے؟ سب کی وہاں سے ہٹتی ہی اس نے فوراً نرس سے آئینہ مانگا تھا۔ آئینے میں اپنی شکل پہچان کر اس نے سکون کی سانس لی۔ تھوڑی کے کنارے پر لمبا نشان تھا۔ کوئی ایسا بڑا تغیر نہیں تھا کہ کوئی ان دو چہروں میں الجھ جاتا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں مہرو نہیں ہوں، اس نے خاموشی سے اس کا جائزہ لیتی نانی کو مخاطب کیا۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئیں۔ تو مہرو ہے، مہرالنساء فاروق، وہ سخت اور سرد لہجے میں بولی۔ ابھی تک جس طرح منہ بند تھا آگے بھی اسی طرح گونگی بنی رہے۔ اس سے زیادہ بات کیے بنا اسی دن وہ اسے دمکی نما ہدایتیں دے کر غائب ہو گئیں۔ وہ ہسپتال حادثے والی جگہ کے قریب تھا جبکہ مہرالنساء کا قصبہ وہاں سے بہت دور تھا۔ 5 دن بعد جب وہ اپنے گاؤں سے لوٹی تو اسے اپنے مہرو ہونے کا راز سمجھ میں آیا۔ ایک بار پھر راجہ باؤ اخباروں کے نمائندوں اور فوٹوگرافروں کے ساتھ حاضر تھا۔ سب کی موجودگی میں ڈاکٹرز، نانی اور راجہ باؤ کی تقاریر کے بعد اسے حکومت سے ملا معاوضے کا 10 لاکھ کا چیک دیا گیا۔ نرس اور نانی کی باتوں سے اسے پتہ چلا کہ ان 5 دنوں میں نانی نے مہرالنساء کے والدین کا مکان فروخت کر دیا ہے۔ اتنے دنوں تک ہسپتال کے بستر پر لیٹے لیٹے اس نے نانی اور نانی کی باتوں کا بغور معائنہ اور مشاہدہ کر کے ان کے بارے میں بہت کچھ جان لیا تھا۔ ان کے متعلق اس کی پہلی رائے اب یکسر بدل چکی تھی۔ اسی دن اسے ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ نانی ہسپتال سے اسے لے کر سیدھے بینک پہنچی تھی جہاں انہوں نے اس کے کھاتے میں چیک جمع کیا اور پھر وہاں سے ماں اپنی 3 بہن کے وہ ایک ہوٹل میں آئی تھی۔ اتنے دنوں سے دواخانے کا کھانا کھا کھا کر دل اچاٹ ہو گیا ہے، آج کچھ اچھا کھاتے ہیں۔ سامان رکھ کر وہ کھانے کا آرڈر دینے خود ہی اٹھ کر چلی گئی۔ ہسپتال سے نکل کر یہاں پہنچنے تک وہ مسلسل سوچ رہی تھی، زندگی کے بڑے بڑے سبق اکثر ہمیں لمحہ بھر میں یوں ازبر ہو جاتے ہیں گویا ہم سالوں سے انہیں رٹتے آ رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک سبق اس نے ابھی ابھی سیکھا تھا اور پہلی بار اخلاق و مروت بھول کر اس نے اپنی بقا کو چنا تھا۔ نانی واپس آ کر اپنی نئے پرس میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ کم سے کم یہی پوچھ لیں کہ مہرالنساء کہاں ہے۔ ذرا دیر انہیں دیکھنے کے بعد اس نے کہا۔ اس نے اپنا لہجہ کھردرا کرنا چاہا تھا لیکن ناکام رہی تھی۔ وہ بھی اور سب کے ساتھ مر گئی ہے، بس اس کی لاش نہیں ملی اور گنتی پوری کرنے کے لیے وہ تجھے اٹھا لائے تھے۔ مہرالنساء زندہ ہے۔ پرس میں حرکت کرتے ان کے ہاتھ تھم گئے۔ کیا؟ مہرالنساء بس میں نہیں تھی۔ ان کے چہرے پر الجھن نمودار ہوئی۔
पर्स एक तरफ रखकर वो टेबल पर हाथ रखकर आगे हुई। और ये तुझे कैसे पता? पहले आप बताएं, क्या आप उसकी सगी नानी हैं? उसका अंदाज ऐसा हतमी था कि वो खुद भी हैरान रह गई। मैं उसकी दादी की फूफी जात बहन हूँ। आप बस में सबके साथ क्यों नहीं थी? पीछे घर की रखवाली, सफाई और उनकी वापसी के लिए तैयारियां कर रही थी। वो तलखी और रुखाई से गोया हुई। वो सब लड़की की बारात लेकर शादी करने कहीं और जा रहे थे। उन्होंने उसे कड़ी नजरों से घूरा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे को सपाट रखा था। वो ठंडी आह भरकर पीछे हुई। उस कमबख्त का गांव के एक गैर मुस्लिम लड़के से मुआशका चल रहा था, जिसके न माँ बाप का पता था न उसका कोई ठिकाना। घर वालों के समझाने बुझाने और सख्ती करने का उस पर कोई असर नहीं था, बल्कि बात खुल जाने पर वो और भी बेबाक और बेपरवाह हो गई थी। सब पीर साहब के पास भागे, जिन्हें वो सब बड़ा मानते थे। उनकी मशवरे पर उसे घर में कैद करके रखा गया। फिर पीर साहब ने उसके लिए लड़का देकर निकाह का हुक्म दिया। घर वालों का ख्याल था कि पीर साहब के आस्ताने पर उनकी मौजूदगी और उनकी दुआओं के असर से वो उस लड़के को भूलकर नई शादी को निभा लेगी। उसके दादा और नाना सगे भाई थे और उनके बच्चों की शादियां आपस में ही होती थीं। इसमें सारे के सारे बस में भरकर निकल गए थे। एक छत के नीचे रहते थे, एक ही साथ खत्म हो गए। उन्हें कोई दुख या अफसोस न था। आप, उन्होंने हाथ उठाकर उसे रोका। बस अब तू बता, मेहरुन्निसा कहाँ है? माँ बानो ने उन्हें खुद उसका बुर्का पहनकर बस में जाने वाला हिस्सा हज़फ करके बैतुल खला से उसके भागने वाली सारी बात बता दी। आह, ये लड़की! उन्होंने सर पकड़ लिया। मरदूद भाग गई उसके साथ। वो उनके बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वो यूं ही सर पकड़े बैठी रही तो उसने पूछा, आपने मुझे मेहरुन्निसा क्यों बनाया? तेरा मुंह इतना सूजा था कि पहले तो मुझे भी नहीं समझा कि तू मेहरू नहीं है। तुझे तो मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ है। सारा गांव तुझे देखने आया था। पीर साहिब भी आए थे, अखबार वाले, टीवी वाले, सब। तू इतनी मशहूर हो गई थी कि तेरा पूरा इलाज मुफ्ती भी हुआ है। अब वो उसे क्या बताती कि उसके साथ साथ जिंदगी में पहली बार उन्हें भी अहमियत मिल रही थी। मेहरू के खानदान ने तो एक छत, 3 वक्त का खाना और साल के 2 जोड़ी कपड़ों के बस उन्हें गुलाम बना कर रखा था। वो यतीम थी और कम उम्री में बेवा होकर वो भी औलाद उनके दर पर आन पड़ी थी। तब से उनका वहाँ सिर्फ इस्तेसाल ही हुआ था। ये उनके अपने मजालिम थे या फिर उनकी आह के एक झटके में पूरा खानदान खत्म हो गया था। आपने उसे मिलने वाले पैसों की वजह से मुझे मेहरुन्निसा रहने दिया। हाँ, इतने दिनों से ये सारी मगजमारी इसीलिए तो थी। पहली बार उन्हें अपने आने वाले कल के लिए उम्मीद, रोशनी और खुशी नजर आ रही थी। फिक्र न कर, तुझे भी दूंगी कुछ पैसे। उन्होंने खुश दिली से फिराक दिली का मुजाहरा किया। कुछ पैसे? ये तो सारे ही पैसे मेरे हैं। पता नहीं कैसे वो ये जुमला बोल गई थी। अपनी 50 साला जिंदगी में उन्हें पहली बार खुश आइन मुस्तकबिल की झलक नजर आ रही थी, जिसके तुफैल में वो सारी ज्यादतियां और मुशक्कतें बुलाने को तैयार थी। जिंदगी भर दूसरों के दर पर उनके टुकड़ों और रहम पर बिताने के बाद बकिया जिंदगी आरामदेह और सहल बनाने की उनकी ये ख्वाहिश बिल्कुल जायज़ थी। और जिंदगी की ये अकलौती खुशी भी अब ये चट्टान भर की छोकरी उससे छीनने की कोशिश कर रही थी। सुन लड़की, वो गुर्राई, मैं तुझे वापस उसी जगह ले जाकर उस खाई में धक्का दे सकती हूँ और पूरा इत्मीनान करके वहां से सिरकूंगी कि तू नीचे खाई की तहों में पहुंच गई है, जहां लाश मिलना भी मुश्किल होगा। वो दोनों अपनी बका की जंग लड़ रही थी, और बात जब बका की हो तो एक ही उसूल होता है कि कोई उसूल नहीं। वैसे तू है कौन? घर कहाँ है तेरा? माँ बाप कहाँ है? किसी ने ढूंढा नहीं तुझे इतने दिनों में? क्या घर से बाकी है? मैंने तुझे मेहरुन्निसा बनाया और तू भी बनी रही। वो चुप रही। और तू वहाँ क्या कर रही थी? क्या तेरा भी एक्सीडेंट हुआ था उसी जगह? और कौन था तेरे साथ? सवाल ही सवाल थे उनके पास। मैं उसी बस में थी, वो इत्मीनान से बोली। है बस में? महबानों ने पहले हजरत किया हिस्सा भी बयान कर दिया। बस दिलावर को गली का बदमाश बताया था। इतने दिनों में तेरे घर वालों का तो बुरा हाल हो गया होगा, और तू घर क्यों नहीं जा रही? फोन भी नहीं किया किसी को। अब उनका माथा नए सिरे से टिटक रहा था।
मेरा कोई नहीं है, अब्बा थे, उनका भी इंतकाल हो गया है। वो बगौर उसे देखने लगी। आया उसका यकीन करें या न करें, अचानक उन्हें ख्याल आया कि मेहरू जिंदा थी और वो कभी भी धमक सकती थी, खास तौर पर उस वक़्त जब पैसों की खबर उस तक पहुंच जाए। उन्हें जल्द से जल्द पैसों के साथ इस इलाके से दूर निकलने की ज़रूरत थी। अब तू कहाँ जाएगी? आप कहाँ जा रही हैं? यहाँ से बहुत दूर, लेकिन सुन, बैंक से पैसे मिलने तक तुझे मेरे साथ रहना होगा। इसके बाद जहाँ जाना है तेरी मर्जी। मैं जानती हूँ पैसे सिर्फ मुझे मिलेंगे। वो उनकी आंखों में देखकर बोल रही थी, जो मैं सारे एक शर्त पर ही आपको दूंगी। क्या उन्हें इसका अंदाज़ा और बात दोनों पसंद नहीं आए थे? आप जहाँ भी जा रही हैं मुझे भी साथ ले चलें। वो उन्हें भांत भांत के लोगों को उन्हीं के अंदाज में बरतते देख रही थी। उन्हें हर किस्म के अपराध और फाला से निमटने का फन आता था, और इतना तो वो जान गई थी कि उसे किसी ऐसी ही दबंग और दुनियादार सहारे के साथ चिपक के रहने की ज़रूरत थी। उन्हें उसे इस किस्म की फरमाइश नुमा डिमांड की तवक्को न थी। उन्हें लगा था वो रुपयों में से बड़ा हिस्सा मांगेगी। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, तुझे कहाँ लेके फिरूंगी? मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है, आपके साथ हर जगह फिर लूंगी। आप यहाँ से दूर जाना चाहती हैं ना? हाँ, तो फिर हम मुंबई चलते हैं। नानी और उसका ताल्लुक इब्तिदा में हादसाती था, फिर इत्तिफाकी हुआ, इत्तिफाकी से मतलबी हुआ, फिर लाजमी और कल्बी हो गया था। बैंक से रुपए मिलते ही उसने पहले डायरी और पेन खरीदकर साहिर के फ़ोन नंबर के याद पहले और आखिरी दोनों आदात उसमें लिखे थे। मुंबई आने के बाद वो मेहरुन्निसा हो गई थी। इस फैले और भरे पूरे शहर में उस पर नानी की मजीद सलाहियतें उजागर हुई थीं। उनके पास वहाँ के मकामी एमएलए का लेटर और सारे अखबारात में उस बस के हादसे के मुतालिक शाया हुई खबरों की तराशी थी, जो वो हर जगह अपने साथ ले जाती और कभी लफाजी से तो कभी जज्बाती ब्लैकमेलिंग से सारे काम करवा लेती थी। उसका कॉलेज में दाखिला, अपने लिए काम और दोनों के लिए टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे और वॉशिंग मशीन से मुज़य्यन एक अदद मकान, उन्होंने इस अजनबी शहर में सब कर लिया था। रिश्तों, मोहब्बत और तवज्जो को तरसी वो दो औरतें एक दूसरे की सारी महरूमियाँ तो मिटा नहीं सकती थी, लेकिन बड़े गैर महसूस तौर पर वो एक दूसरे का पूरा ख़ानदान बन गई थी। उन्हें एक मशहूर लॉन्ड्री में कपड़े इस्त्री का काम मिला था और बकिया पैसों से उन्होंने एक बहुत छोटी सी दुकान खरीदकर किराए पर चढ़ा रखी थी। वो उन 4 नंबरों के साथ दीगर नंबर मिलाकर रोज फ़ोन ट्राई करती थी। उसे कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो राह चलते शहरों के सैलाब में वो मानूस चेहरा ढूंढती रही। उस अजनबी शहर में अजनबियों के दरमियान उसे एक मानूस चेहरे की तलाश थी। जूनियर कॉलेज के बाद उसने बीए किया और फिर जब उसे नौकरी मिली तो उसने नानी से बहुत कहा कि वो अब आराम करें, लेकिन उनका जवाब था उन्हें आराम की आदत नहीं। इतने सालों में जो असल तरक्की हुई थी वो उन दोनों का रिश्ता था। बज़ाहिर अब भी उनकी जुगलबंदी जारी रहती थी, लेकिन वो नानी की सोई छुपी ममता की तस्कीन का सामान थी, तो उसने भी माँ के आगोश की हिदत का मज़ा नानी के सीने से लगकर ही चखा था। 11 साल गुजर गए थे, लेकिन हर रोज़ उन 2 रातों को दिल व जहन में ताज़ा करते मेहरू को ये 11 दिन से ज़्यादा नहीं लगते थे। वो आईने में खुद को देखते हुए एक ही किस्म के सवालों से नम्रत आजमा हुई थी कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा बदल तो नहीं गई, मेरी पहचान मुश्किल तो न होगी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे अपने मौजज़ाती तौर पर बच जाने के मुतालिक लोगों के ख्यालात सुनते ही उसे अपने ज़िंदा रहने की वजह समझ आ गई थी। उसकी ज़िंदगी देने वाले के बाद अब ज़िंदगी बचाने वाले की अमानत थी, और यही यकीन उसके इतने सालों के इंतज़ार और तलाश की बुनियाद था। कड़े और नामसाइद हालात में अक्सर हमारी सबसे काबिल सलाहियत उभर कर आती है, और इन गुजरे सालों में उनकी जो खूबी उभरी थी वो उसकी रजायत पसंदी थी। उसने कभी थक कर या मायूस होकर हार नहीं मानी थी, ना ही इंतज़ार ख़त्म किया था। उसकी डायरी की औराक ख़त्म होने को आए थे। वो अपने याद 4 नंबरों के साथ दूसरे 6 अदद मिलाकर फ़ोन लगाती रहती थी। इस दौरान कभी पड़ोसी तो कभी कॉलेज की हम क्लास लड़कियां रिश्ते लेकर आईं, लेकिन उसे उसमें कोई दिलचस्पी न थी। लाख नानी के समझाने के बावजूद भी इस मामले में वो कुछ सुनने को तैयार न हुई, तो
उन्होंने भी इस जिक्र को ख़त्म कर दिया। उनके तजर्बे और जहांदीदा अक्ल ने उसके कुछ न कहने के बावजूद भी उन्हें बहुत कुछ समझा दिया था। उसे जब भी अपनी पिछली जिंदगी का ख्याल आता तो वीनू और सोनू की दिल से याद आती थी। वो सोचती कि वो दोनों किस हाल में होंगे और दुआ ज़रूर करती कि उनकी खसलतें दिलावर जैसी न हों। कभी उसे ये ख्याल परेशान करता कि जिस पैसे के बलबूते पर उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी संवारी है वो दरअसल किसी और के लिए था। ऐसे वक्तों में नानी उसे खूब सुनाती, फिर आखिर में तसल्ली देती कि जिस दिन मेहरुनिसा उन्हें मिल गई वो उसका पैसा उसे लौटा देंगी। हालांकि वो सारा पैसा खर्च हो चुका था। छुट्टी के दिन वो नानी को लेकर गेटवे ऑफ इंडिया गई थी। रात में वापसी के वक्त ट्रैफिक की वजह से बस सड़क पर रुकी थी और यूं ही खिड़की से बाहर देखती हुई उसकी 11 सालों की तलाश खत्म हो गई। सड़क के दूसरे किनारे पर वो साहिर ही था। वो बेताबी से खड़ी हो गई। अरे क्या कर रही है? उसे तेजी से दरवाजे की तरफ जाते देखकर नानी ने हैरानगी से पूछा। आप घर जाएं, मैं आती हूँ। वो पलटकर बोली और सड़क पर उतर गई। भैया जरा रुकना। उन्होंने अपनी नशिश से उठते हुए कंडक्टर को इशारा किया। मुझे भी यहीं उतरने दो। वो भी उसके पीछे बस से बाहर निकली। मुझे छोड़कर तुझे कहाँ जाना है? उसके अंग अंग से चलकती उजलत देकर उन्होंने पूछा। जरा यहाँ घूमने का मन हो रहा है। वो उनका हाथ पकड़कर गाड़ियों के दरमियान रास्ता बनाकर सड़क अबूर करने लगी। अरे मैं बूढ़ी तेरी तरह भाग नहीं सकती, उन्होंने एहतजाज किया। वो बाकायदा उन्हें घसीट रही थी, लेकिन वो सुन कहाँ रही थी। उसके तो कान जैसे बंद हो गए थे। आप यहाँ बैठें, मैं जरा चहलकदमी करके आती हूँ। सड़क पार करके समुद्र के किनारे बने फुटपाथ पर उन्हें सीढ़ी पर बिठाकर कुछ सुने बिना ही जिस सिमत से बस आई थी वो उल्टा उसी सिमत में तकरीबन दौड़ी थी। एक नई और अनोखी सनसनाहट व सनसनी उसके अंदर दौड़ रही थी। जो बातें उसे पिछले 11 सालों में सोचने चाहिए थे वो सारे ख्यालात एक साथ उस पर वारिद हुए थे। क्या मैं उन्हें याद हूँ? वो मुझे पहचान लेंगे? दरमियान में कई साल भी तो हैं। उनकी फैमिली शादी कर ली होगी तो उनकी बीवी और बच्चे। चंद कदमों का फासला तय करते ही सनसनी और सनसनाहट उदासी में ढलने लगी। उसके मुकाबल जाकर ऐसी दिल शिकस्ता हकीकत का सामना करने से बेहतर था वो इंतजार को ताउम्र यूं ही रहने दे। शहर का शहर यूं ही बिना रहे तो जिंदगी ज्यादा सहल होगी। उसने अचानक पलटने का इरादा किया। अंदर कोई चीख कर उसे आगे बढ़ने को कह रहा था, मगर उसने कदम मोड़े तभी साहिर की आवाज आई।